Hello everyone, myself Tarang Gidwani. Last time we did in the બિસ્મિલ્લા ખાન આપણે જોયું હતું કે બિસ્મિલ્લા ખાન કેવી રીતે જીતા હતા, એમને કેમ શરણાઈ પસંદ હતી, એમને ક્યારે શીખી અને કોણ મદદ કરતું હતું એમને. તો હવે આપણે જોઈશું પેજ નંબર 27 પર જે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. તમારે બગાડવાનું તો હંમેશા કાર્યક્રમ માટે અને કમાવા માટે જ બનતું હશે. મનની મોજ ખાતર કે કોઈને રાજી કરવા ખાતર બગાડવાનું બનવું ખરે? तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो जर्नलिस्ट है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बजाने का जो कार्यक्रम है वो कमाने के लिए तो ठीक है, पर क्या आपने मन से कभी किसी को राजी करने के लिए कभी शरणाई बजाई है? तो हाँ, ઘણી વાર એવો પ્રસંગ બને છે. કોઈ વાર પાછળથી પણ એવી મોજ અનુભવવી પડે છે. એક વખતે કલાત્મક એક સંસ્થાએ એને ફાળા માટે મોટો કાર્યક્રમ માંગ્યો. એની પાસે મને આપેલા પૈસા ન હતા. મેં એને જ મળે ત્યાંમાંથી અડધું આપવાની શરતે કાર્યક્રમ સ્વીકાર્યો. કાર્યક્રમ સારો થયો, ખર્ચ પર જતાં બચત પર સારી થઈ, પણ એ ભાઈને મોં પર અડધો ભાગ જ મને દેવાની ઈચ્છા ન જણાય. છતાં કચવાતા મને શરત હતી તેથી ભાગ આપી દીધો. મેં એને મુખભાવ જોઈ મારા ભાગમાંથી 100 રૂપિયા પાછા આપ્યા એટલે બહુ જ ખુશ થયા. એને મોં પરની ખુશાલી જોઈને મને થયું, જે માણસ 100 રૂપિયા આપવાથી આટલો ખુશ થાય છે તે હું બધો ભાગ આપી દઉં તો કેટલો ખુશ થાય. અને મેં ક્યાં લેવાની આશા રાખી હતી, કંઈ મળવાનું તો નહોતું, પહેલાંથી ધારેલું હતું. તેમાં મળ્યું છે તો મારે આવું લેવું ન જોઈએ એમ વિચારીને આ બાઈને મેં ફરી મારા પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, લો, આ તમારા પૂરી રકમનો ઉપર મારા તરફથી 11 રૂપિયા રોકડા. હું કંઈ લેવા નહોતો આવ્યો, મને તો માલિકને આપવું હશે તો એ આપી દઈશ કહીને મેં મારા ભાગમાં આવેલી દીધી રકમ આપી દીધી. એ જોઈને આટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે મને આપને આપ્યો અને શરણાઈ વગાડ્યો संतोष થયો. तो अब वो बोल रहा है कि हाँ, ऐसे प्रसंग बहुत सारे बने. कभी कभी मतलब ऐसे अनुभव हुआ कि एक बार कलात्मक संस्था ने बहुत फाड़ा रखने के लिए, मतलब कुछ नेशन में करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था जिसमें उनको मेरी ज़रूरत थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे. तो मैंने वो आधा दे हुए ऐसे रकम के शर्त रखी थी. कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, खर्च के बाद भी थोड़ा बहुत जो बचत हुई बहुत अच्छी हुई. और भाई ने मेरे को आधा जब दिया तो उसके मुंह पे बहुत खुशी नहीं थी. तो वो खुशी नहीं थी इसलिए जो बिस्मिल्ला खान है उसने थोड़े पैसे उसको वापस दे दिए, 100 रुपये दे दिए उसमें से उसको जो मिले. तो 100 रुपये देने से ही वो बहुत खुश हो गया. तो फिर बिस्मिल्ला खान ने सोचा कि 100 रुपये देने से मुझे इसको इतनी खुशी होती है तो मैं क्यों ना क्यों पूरा अगर पैसा दे दूँ तो वो कितना खुश हो जाएगा. तो इसलिए उसने उसको फिर संस्था के जो मैनेजर थे उसको वापस बुलाया और बोला कि ये लो तुम्हारे पूरा रकम, 11 रुपया जो रोकड़ा है उसके एक्स्ट्रा दिए उसने. और मैं वैसे भी बिस्मिल्ला खान थे, वो प्रोग्राम जो करते थे उसके लिए कुछ सोचते नहीं थे पहले से कि मेरे को ये लेना है वो लेना है, इसमें से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा. तो इसलिए वो सोचा कि ऐसे भी का मुझे कोई बेनिफिट लेना ही था, इसलिए तुम खुश रहो, बस उसको ऐसी इच्छा थी. तो वो कह के उसने पैसे दे दिए बिस्मिल्ला खान ने मैनेजर को. तो આ જોઈને એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે મને પણ આપ્યો ને અને શરણાઈ વગાડવાનો સંતોષ થયો कि वो भी खुश हुआ और मुझे भी संतोष मिला कि मैंने किसी की हेल्प की. दैट्स वाई उन्हें वो मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं पर किसी को राजी करने के लिए भी उसको ऐसे बहुत सारे प्रसंग बने किसी वो इसलिए शरणाई बजाते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. જીવનના કોઈ ખાસ પ્રસંગ યાદ આવે છે? હા, 2-4 પ્રસંગો યાદ આવે છે કે જીવનભર ભૂલી નહીં શકું. હજુ 4 દિવસ પહેલા જ મામા સ્વપ્નમાં આવેલા. થોડા દિવસ પહેલા મનમાં થયા કે મામાને સાંભળ્યાને કેટલા વર્ષ વીત ગયા. 1940માં તો ગુજરી ગયા, હવે ક્યાંથી સાંભળવા મળવાના. ને મને સ્વપ્ન આવ્યું, મામાના મોટા ભાઈ બંને બેઠા છે, હું શરણાઈ બજાવું છું પણ સારી બનતી નથી, પણ મામા બજાવે છે ને ખુશ થઈ જાઉં છું. આ તો સ્વપ્નની વાત છે. હવે સાચો પ્રસંગ કહું. જ્યારે હું 15 વર્ષનો હતો ત્યારે સારું વગાડતા શીખી ગયો. લોકો મારી પ્રશંસા કરતા પણ મામા હંમેશા ટોક્યા કરતા. તેઓ કહેતા સૂર વચ્ચે રહી જાય છે ને એની આજુબાજુ જ ફર્યા કરે છે, સૂરમાં દાખલ થતો નથી. એમના હવે વલણથી મને માઠું લાગ્યું. મને મનમાં થતું કે જાણી કરીને મામા મને પાછા પાડવા આવી ટીકીઓ કર્યા કરે છે. મને સારું આવડે છે એટલે મારો ઉત્સાહ ભંગ કરવાનો જ એમની નેમ છે. મારા આવા વિચારના મામાને ખ્યાલ આવી ગયો. એમને થયું કે છોકરાને મદ આવી ગયો છે, પણ એમણે મને કંઈ કહ્યું નહીં. तो बोलते कि हाँ, मुझे ऐसे कई सारे प्रसंग याद आते हैं कि जी मेरे बहुत खास है
कि 4 दिवस पहले मामा और मोटा भाई जो थे वो स्वप्न में आए थे। 1940 में उनकी एक्सपायर हो गए थे, मतलब उसके मामा। तो वो दोनों आए थे सपने में, मैं शरणाई बजा रहा हूँ और वो मेरे को शरणाई बजा के खुश हो रहे हैं। और वो भी जब शरणाई बजा रहे हैं तो मुझे इतना गमगीन लगता है कि मतलब मैं अपना ही शरणाई भूल जाता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि अब तो मैं सच्चा आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब 15 वर्ष का था तब मैं बहुत सीख गया था, थोड़ा बहुत मतलब मेरे को आता था। तो इसलिए जब भी स्टेज परफॉर्मेंस करने जाता तो लोग प्रशंसा करते। अब लोग प्रशंसा करते पर जो मामा थे वो टोक्या करते कि जो तेरे सुर है ना वो वचे वच रह जाते हैं और आजू बाजू फर्क है, मतलब तेरे को अच्छी तरह अभी तक बजाना आया नहीं है, तेरा सुर जो है वो अच्छी तरह दाखिल नहीं हो रहा है। तो ये सुन के उसको मामा की ये बात सुन के बिस्मिल्लाह खान को बहुत खराब लगता। मतलब वो उनको लगता कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब जानबूझ के ये ऐसा कुछ भी कह रहे हैं जिससे मेरे को सारा बजाना आवे नहीं, मतलब अच्छा बजाना ना आवे। अब मामा को इस बात की ख्याल आ गई थी कि वो ऐसा मतलब बिस्मिल्लाह खान बुरा सोच रहा है मामा के बारे में। तो मामा ऐसा सोचते कि छोकरे को बहुत ईर्ष्या आ गई, मतलब क्या ईर्ष्या, घमंड आ गया है। और उन्होंने फिर मामा ने उसको कुछ कहा नहीं। એક દિવસ રાત્રે હું તિલક કામોદ વગાડતો હતો, મારા મનથી હું ઉત્તમ વગાડતો હતો। મામાએ મારે બજાવવાનો ભેદ મને સમજાવ્યો, બાજુના ઓરડામાં બેસીને જ એ રાગ વગાડવા માંડ્યા અને એ રાગ સાંભળતા મારો મધ ઉતરી ગયો। એમની પાસે મારે રાગ કેટલો નબળો હતો તેનો મને બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો। એમની સાધના જ એવી હતી કે એ સૌને ઝાંકી પાડી દે। अब एक रात को है ना वो कुछ संगीत का तिलक मत कामत बजा रहे थे, तो वो बहुत अच्छा बजा रहे थे। पर जो मामा उसके बोल बताने जा रहे थे, इसलिए वो बाजू में दूसरे रूम में ही वो भी वही बजा रहे थे। तो उसका राग सुनते ही जो बिस्मिल्लाह खान है उसको गलतियां पता चल गई कि उसका सुर कितना नबरा है, मतलब बहुत मिस्टेक सारी पता चल गई। तो वो बोल रहे कि मामा जी का मतलब ऐसा ही था कि वो सबको पहचान लेते थे और उनका मिस्टेक सुधारने का भी एक अलग ही मतलब अपना था। मतलब वो दूसरी जगह बैठ के खुद ही बजा रहे हैं, जैसे वो बिस्मिल्लाह खान को नहीं बताना चाह रहे, पर बिस्मिल्लाह खान सुने तो उन्हें पता चल जाए कि उसकी क्या मिस्टेक्स हैं। डायरेक्ट बोलेगा तो बिस्मिल्लाह खान को लगेगा वापस के जानबूझ के बोल रहा है। ओके, तो ये भी बहुत खास प्रसंग है उनके लिए। एक બીજો પ્રસંગ પણ યાદ આવે છે, મામાની પાર્ટી અલીબક્ષ એન્ડ પાર્ટી કહેવાય। એક જગ્યાએ શરણાઈની સ્પર્ધા યોજાયેલી, મામા બીમાર હતા એટલે એમને બદલે મારે આમાં ભાગ લેવા જવાનું। જતી વખતે મામાના પગે લાગ્યો ત્યારે મામાએ આસમાન સામે જોયું, ખુદાને યાદ કરી મારી વાંસા પર હાથ મૂક્યો અને પછી હિંમત આપતા હોય તેમ વાંસામાં ઠપકોએ રજા આપી। એ વખતે હું મન બદલાઈ લાગ્યો, મારામાં જાણે મામાને પ્રવેશ થઈ ગયો એવે અનુભવે થયો। હરીફાઈમાં હું જીત્યો, મારી વાહવા થઈ ગઈ, પણ ઘેર આવ્યો તે પછી તો તેઓને તેવો બની ગયો હોવ एवो अनुभव। मामा की शक्ति परिचय मैंने त्यारे था। तो अब एक बार अलीबख्श एंड पार्टी का कुछ प्रोग्राम था, तो मामा बीमार थे इसलिए वो जा नहीं पाए। तो जो ये बिस्मिल्लाह खान है उनको जाना हो पड़ा। तो बिस्मिल्लाह खान जब पैर छू के मतलब मामा जी के पैर छुए उसने, तब ऐसा लगा कि उसको कि मामा उसके अंदर आ गए और वो पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से ऐसा मामा की तरह ही करके आया। और फिर घर पे आके बोलता है कि मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे में मामा की शक्ति चली गई है वापस। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मामा की शक्ति का उस टाइम पे उसे परिचय आया कि कहीं पे भी प्रोग्राम चल रहा था तो मामा के जो उसका मामा जब हाथ रखते पैर के, जब वो पैर छूता तब मतलब उसमें ऐसा होता कि उसमें ही उनकी शक्ति आ जाती, मतलब मामा की शक्ति आ जाती और जिसकी वजह से वो जीत के भी आए। છેલ્લા પ્રસંગ છે મને અવસાન સમયનો। જિંદગીમાં કદી ના ભૂલાય તેવા ભાગ્યને એ બનાવ છે। આજે હું છું એમની દુઆએ હું માનું છું। મામા છેક સુધી સારા હતા। એક દિવસ અચાનક બપોરે 4 વાગે તબિયત ખરાબ થઈ, રાતે 10 વાગે વધુ ખરાબ થઈ ગઈ। હું એમની પાસે બેઠેલો, તેઓ થાળીમાં તરફતા હતા। એમને એમ બેઠા બેઠા મને ઊંઘ આવી ગઈ। લગભગ 2 વાગે મામાએ મને ઉઠાડ્યો। હું ગભરાઈને જાગી ઉઠ્યો। મેં પૂછ્યું પાણી જોઈએ? એમણે ના પાડી। મેં ઊંઘ ઉગાડીને જોયું તો મામા એકદમ સાજા લાગ્યા। થોડા સમય પહેલાની એમની બંનેની ક્યાંય દેખાતી નહોતી। તેઓ પથારીમાં બેઠા થયા અને આસમાનમાં જોઈને કંઈક બોલવા લાગ્યા। પછી મને પોતાની પાસે લીધો, ખૂબ ભેટ્યો, મને ગળે લગાડીને ખૂબ હિત કર્યો। પછી કે જાઓ ખુશ રહો, અને હું સૂઈ ગયો। સવારે 7 વાગે એમણે દેહ છોડ્યો। આ છેલ્લું એમનું હેત, છેલ્લી એમની દુઆ, આજની મારી કંઈ પણ નામના એ સામનો દુઆનો આધાર જ છે। तो वो तीसरा प्रसंग, लास्ट प्रसंग बता रहे हैं कि जब मामा की मौत आई तब मतलब मामा बहुत ठीक थे पूरे दिन, पर रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई, फिर भी वो ठीक थे, इतने मतलब नहीं थे। सो जो मामा थे वो बीमार हो गए थे 10 बजे के आसपास। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बैठे थे, मतलब उनके साथ साझा निकले। फिर अचानक उनको नींद आ गई और वो मतलब सो गए।
फिर लगभग 2 बजे मामा ने उनको उठाया कि वो घबरा गए। उन्होंने पूछा बिस्मिल्लाह खान ने कि आपको पानी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, कि भाई मतलब मेरी ऊँग अभी चली गई है। और वो बहुत ठीक लगने लगा। जो रात को उनको बेचैनी थी थोड़ी देर पहले, वो अब नहीं थी। ऐसा होता है कि मतलब को जो इंसान है ना मृत्यु पाता है, उस थोड़े ऐसा कभी बहुत सारे केस में होता है कि जो 2-3 घंटे पहले वो बहुत अच्छे होते हैं, बट ऐसा लगता नहीं कि अब वो इंसान जाएगा, मर जाएगा या नहीं। बट एक्चुअली में ये केस होता है कि वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो हमें बहुत शौक लगता है। तो वैसे ही वो मामा बहुत ठीक लग रहे थे, और उन्होंने फिर लास्ट में बहुत उन्हें बेटा बिस्मिल्लाह खान को मतलब बहुत गले लगाया, और उन्होंने बोला कि जा खुश रहे। और वो फिर उन्होंने बोला कि तू सो जा बिस्मिल्लाह खान को, तो बिस्मिल्लाह खान सो गए। अब सुबह 7 बजे जब उठते हैं तो बिस्मिल्लाह खान के मामा ने तेज छोड़ा हुआ होता है, और मतलब इसलिए उनको जो लास्ट में जो उन्होंने प्यार दिया मामा ने, दुआएं दी, वो आज तक वो मानते हैं कि वो बहुत काम आती है, और वो दुआएं बहुत उन्हें याद आती है बिस्मिल्लाह खान जी को। ओके, सो आज हम यहाँ तक रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर पूरा कर देंगे। और शायद मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, बट प्लीज़ ऐसा मत सोचना, क्योंकि हम कुछ स्लो नहीं चल रहे हैं। ग्रामर टॉपिक्स भी फटाफट आते रहेंगे। हम संडे संडे को ही मैं वीडियो डालूंगा सब, प्लीज़ तो आप कोऑपरेट करना थोड़ा, और कोर्स पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।